کو یاد ہے کہ عدالت نے 2 آرڈر پاس کیے ہیں پچھلے 15 دن میں. پہلے آرڈر میں عدالت نے جو پہلی سماعت کی اس کے بعد یہ کہا کہ چیمبر میں جو سا ہیئرنگ ہوگی. اور چیمبر ہیئرنگ جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں کہ جہاں سے معاملہ جو ہے وہ مزید جوائنٹ ورکنگ گروپ کی طرف جو گورنمنٹ آف پنجاب نے کریٹ کیا ہے تمام اداروں پر مشتمل, اس کی میٹنگ میں جو سا ہے وہ ہمیں بتایا گیا اور ہدایت دی گئی کہ ہم جائیں عدالت کی طرف سے اور ان کو پروسیڈنگ ہم جوائن کریں اور وہاں پہ جا کے اپنی ساری باتیں رکھیں. ہم نے تفصیلاً جو سا ہے اپنی گزارشات, اپنے تمام تحفظات اور اپنی جتنی بھی جو مٹیریل ہمارے پاس تھا اور کنٹینشن تھی وہ اس کمیٹی کے سامنے رکھی. اس کے بعد عدالت کے سامنے ایک مرتبہ پھر پروسیڈنگ آئی اور ایک مرتبہ پھر ہمیں ہدایت گئی کہ ہم دوبارہ جو سا وہ جائے. اس میں ہم پھر جو ہے وہ 2 دن پہلے گئے ہیں اور تفصیلاً جو ہے وہ ہم نے اپنی گزارشات موقف کو وہ دہرایا بھی اور مزید بھی جو ہے وہ سامنے رکھا. اس کے بعد ہمارا ایک رسمی و غیر رسمی جو ہے وہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ادارے, ان سے ہمارا ایک تفصیلی جو ہے وہ اب سیشنز جو ہیں وہ ہوئے ہیں جس میں وہ بڑے ہوپفل ہیں جو اس وقت جو کہ ہمارے نامزد ملزم ہی ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, لیکن انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے, اس فورم نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے جہاں پہ تمام لوگ ہیں کہ ہم نے بہت مثبت جو ہے وہ ڈائریکشن میں اب یہ مواد اکٹھا کر لیا ہے, پروگرس کی ہے کیس کی تفتیش کی, اور جس میں وہ انتہائی پر امید ہیں, جس کی امید پر ہم نے عدالت میں جونسا ہے ان کی امید پر جونسا ہے اور ان کی جونسا ہے وہ یقین دہانی پر کہ اب بہت جلدی وہ ہمیں مثبت نتائج دینے والے ہیں اور عمران خیریت سے جونسا ہے وہ بازیاب ہو کے جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا. اور اسی یقین دہانی کی بنیاد پر جو ہے وہ عدالت نے ہم سے آج یہ سوال کیا کہ آپ نے پروسیڈنگ جوائن کی ہیں اور آپ کا کس طرح کا جو سا تجربہ رہا, تو جس پر ہم نے عدالت میں یہ تمام گزارشات جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پیش کی ہیں. اور اس کے بعد عدالت نے جونسا ہے وہ مہلت دی ہے ایک 10 دن کی, جس میں ہم نے ایک مرتبہ پھر عدالت میں جو سا گزارش کی کہ یہ ممکنہ طور پر ہم امید آپ سے لگا رہے ہیں کہ یہ بس آخری دن ہی جو ہیں آخری 10 دن ہی اس پروسیڈنگ کے وہ کنسیڈر ہوں گے. تو اب انشاءاللہ امید بازیاب ہو کے خیریت سے اور عافیت سے انشاءاللہ اپنے گھر والوں میں وہ آئے گا. جو اگلے 10 دن دیے ہیں یہ آخری 10 دن ہو گئے, اس کے بعد کوئی سماعت نہیں ہوگی؟ یہ ہماری عدالت میں گزارش ہے, عدالت نے 10 دن کا ٹائم دیا ہے کہ اب انشاءاللہ اب یہ جو میٹنگز ہماری ہو رہی ہیں اس کے انتہائی مثبت نتائج جو ہے وہ آپ کے سامنے بہت جلدی جو ہے وہ لے کے آئیں گے اور عمران بازیاب ہو کے خیریت سے. رسمی و غیر رسمی طور پر بھی ہمیں یقین دہانیاں ہیں اور میں پہلے بھی بار بار جو سا کہہ چکا ہوں کہ جتنی سوشل میڈیا کی اسپیکولیشنز ہیں جو لوگوں کے اندر فیئر, پینک اور جو ہے وہ ایک ٹیریفائنگ قسم کی فیلنگ لے کے آتے ہیں, تو اس فورم کے تھرو جو ہے وہ چونکہ عمران کے والد میرے ساتھ موجود تھے اور مسلسل جو سا ہے وہ ہم پے در پہ دن اور رات جو سا ہے وہ یہ ساری پروسیڈنگز کو جوائن کرتے رہے ہیں, بار بار جو سا ہے وہ ہم رسمی و غیر رسمی طور پر جو ہے وہ یہ سارے معاملات کا حصہ جو سا وہ رہے ہیں. تو میں ان کی جو رسمی اور غیر رسمی بیانات ہیں اس فورم کے اور جو پولیس کی طرف سے ہمیں سارے ہائیسٹ لیول پہ جو سا شورسز ہیں وہ یہی ہیں کہ الحمدللہ انشاءاللہ وہ خیریت سے ہے, سیف ہے اور انشاءاللہ وہ خیریت سے بہت جلدی جو ہے وہ ہمارے سامنے اب آ جائے گا. چونکہ شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ وکلاء کے پاس نہیں ہے, وہ صرف اور صرف جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کے پاس ہے, تو آبویسلی ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے شواہد اکٹھے ہو گئے ہیں جس پہ اپنے تجربے کی روشنی میں اور مواد جو ان کے سامنے آیا اس کی بنیاد پر وہ یہ کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ خیریت سے اس کو بہت جلدی واپس ہمارے سامنے ریکور کر کے لے آئیں گے اور بازیاب ہو جائے گا. عمل بڑا واضح ہے, ہم نے آج تک بڑی معاملہ فہمی سے جو سا ہے وہ اس وقت جو سوشل آپ نے دیکھا فیبرک جس لیول پہ پہنچ چکا ہوا ہے, جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں, ہم نے انتہائی معاملہ فہمی سے, انتہائی صبر, انتہائی برداشت سے جو سا ہے وہ سارے معاملات کو اس وقت تک حل کرنے کی کوشش کی ہے. بنیادی طور پر جو سا ہے وہ ہمیں یہ بھی جو سا ہے وہ واضح طور پر یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کی جو معاملہ فہمی ہے اسی سے ہی مثبت نتائج جو ہیں وہ آگے آنے کا, کہ جب لٹیگیشن میں فریق جو آتے ہیں عدالت میں اپنے اپنے مقدمے لے کے تو اپنا اپنا بھرپور موقف دیتے ہیں. ہم نے اپنا بھرپور موقف جو ہے وہ اس کیس میں ماضی میں دیا ہے, جس کو ابھی تک جو ہے وہ ہم چونکہ ہمیں یقین دہانیاں اور بار بار جو سا امید دلائی جا رہی ہے اچھی, تو ہم اس کو ود ہولڈ کر رہے ہیں فار اے ویری لٹل وائل طور پر جو سا وہ بنائیں گے انشاءاللہ. 34 دن ہو گئے ہیں, 34 دن میں آج تک عمران ریاض کی ویڈیو بیان سامنے نہیں آیا کیا سرائیوں پر مبنی کہ اس کی زبان بندی جو ہے وہ بند کی جائے یا اس سے کمپرومائز جو ہے وہ ہو گیا ہو یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہو. تو 34 دن میں جب عمران ریاض کا کوئی ویڈیو بیان پبلک میں نہیں آیا نا تو اس کو سمجھ جائیں آپ, یہ آپ کے لیے اشارہ ہے. اور جو قیاس سرائیاں ہیں نا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ زمین باس ہو جاتی ہے. آج بھی ہیں جو تحفظات, میری غور سے بات سن لیں, جتنے تحفظات ہم نے عمران ریاض کے لیے اس کے کیس میں پہلے دن سے جو سا وہ رکھے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی جو سا ہے وہ تبدیلی نہیں ہے. وہ ساری کی ساری باتیں ایسی ہیں, یہ میں سے
सिर्फ बातें जो है वाज़ेह जो है वो कर दूं, मुकम्मल तौर पर इमरान के वालिद, इसकी सारी फैमिली ये 100% जो है वजाहत कर चुके हैं सारे फोरम पे कि हमें कतई तौर पर भी जो है आपकी कहानियों से, आपकी बातों से, आपकी प्रोसीडिंग से इत्मीनान नहीं है। हमने अपना सब्र, अपनी बर्दाश्त, अपना तहम्मुल आखिरी हद तक, और जो जिसको हम मामला फहमी कहते हैं वो हमने बरकरार रखी हुई है। हम चाहते ही नहीं है कि हमारी जो है वो किसी भी जो है सरकारी व रियासती इदारे से ना कभी कोई लड़ाई थी, ना है, और ना ही हम जो है वो करना चाहते हैं। आपको मैं याद दिलाता चलूं अरशद भाई कि हमने जितनी मरतबा जो है वो अदालत में जो है वो ये ब्रीफ जो मामला सामने आया या आपके सामने पब्लिक में आया, बार बार जो है ये बात कही है कि आप इमरान रियाज को बाजियाब करें। हमने जो मुकदमा दायर किया है आपके खिलाफ, हमने जो आपके मुकदमा उसकी गुमशुदगी का, अगवा का, और उसके साथ जो है वो उसकी ततिम्मा बयान जिसमें आईजी पंजाब को नामजद किया है, हम इनको प्रोसिक्यूट करने में जो है दिलचस्पी छोड़ देंगे कतई तौर पर। जिस वक्त इमरान रियाज बाजियाब होकर आया, हमारी लड़ाई जो है वो उसकी बाजियाबी की हद तक है, जिसमें जब तक वो बाजियाब नहीं होता हमारा लीगल, सोशल, मॉरल और प्रोफेशनल और फैमिली राइट है कि हम इसको जो है वो पैरवी जो है इस तरीके से करें। ये की जा रही है कि कुछ मुतालबात रखे जा रहे हैं इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से, मशरूत किया जा रहा है, जमाबंदी का कहा जा रहा है, तो वो मुतालबात जो है वो इस वक्त डिस्कस भी किए जा रहे हैं। क्या वो मुतालबात दुरुस्त है? बड़ा अच्छा सवाल है। आपके सवाल में ही जो है वो स्टार्ट हुआ है क्यास राइयां। तो क्यास राइयों पर जो है ना वो कतई तौर पर भी जो है किसी किस्म की कोई ऐसी क्यास राइयां नहीं है। इमरान रियाज के जो मामला हैं, या वो मैं इसका अकेला वकील हूं मियां अली इशफाक, उसके वाले साहब है पिटिशनर इमरान रियाज, या मेरे पार्टनर शाहज़ेब मसूद साहब, जितने भी जो है इस तरह के मामला हैं हसासियत से मुतल्लिका जो है, अगर आपने कभी कोई बात पूछनी है, करनी हो, तो बराह रास्त वकला से किया करें। कोई थर्ड पार्टी जो है ऐसा कोई भी सोर्स कहीं से भी लेके आती है, उन्हें बराह मेहरबानी कहें कि वो इन कयास राइयों पर मबनी जो है वो हमें एक एफिडेविट दें, ताकि हम अदालती मुआवनत जो है करें और कार्रवाई बेहतर करें। सिर्फ मैं आपको जो है इमरान के बिहाफ पे मैं आपको एक बात बता दूं, और अकल का जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल लाजमी है। 34 दिन हो गए हैं, 34 दिन में आज तक इमरान रियाज की वीडियो बयान सामने नहीं आया क्यास राइयों पर मबनी कि उसकी जुबान बंदी जो है वो बंद की जाए, या उससे कॉम्प्रोमाइज जो है वो हो गया हो, या कोई ऐसी बात हो गई हो। तो 34 दिन में जब इमरान रियाज का कोई वीडियो बयान पब्लिक में नहीं आया ना, तो इसको समझ जाए आप, ये आपके लिए इशारा है। और जो क्यास राइयां है ना, उनकी डेथ हो जाती है, वो कंप्लीटली जो है वो जमीन बॉस हो जाती है, जब तक जो है कोई इस तरह की चीज आपके सामने नहीं आती। और हम तो यहाँ तक भी जो है मुतालबा कर चुके हैं कि जो इर्द गिर्द के लोगों से जो है आप बातें जो है कहलवाते हैं, बराए मेहरबानी जो है इमरान रियाज को आपने पहले 23 केस जो है झूठे डाल दिए हैं। खुदा का वास्ता किसी 24 में या 25 में झूठे केस में डाल दें, लेकिन हमारी आंखों के सामने तो जो है वो लेके आए, वो झूठे केसों का हम अदालतों में सामना कर लेंगे। मैंने इमरान रियाज को देखा नहीं है, मैं उससे मिला नहीं हूँ, हमें उसकी जिंदगी जो है और मौत की कश्मकश में जो है वो पड़े हुए हैं। आपका सवाल ये है कि उसकी हैसियत कैसी है, इररिलेवेंट सा क्वेश्चन है। इस दफा आपकी तरफ से ये एक दी गई है मोहलत, इससे पहले जो है आईजी पंजाब मोहलत मांगते थे। बस ये आईजी पंजाब साहब और तमाम लोग जिन्होंने हमारी 34 दिन मामला फहमी जो है वो देख लिया है। हमने इस वक्त जो है वो इमरान रियाज की वजह से, इमरान रियाज की जिंदगी के लिए, इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए जिस हद तक इन हालात में, जो आजकल मुल्क की हालात हैं, जिस हद तक रिस्ट्रेंट शो करना था वो हमने किया है, बहुत ज्यादा कर दिया है। हमारे लिए एक एक लम्हा उसकी जिंदगी मौत जो है वो उस पर सवालिया निशान है। हम एक एक लम्हा जो है परेशान है, हमारा एक एक लम्हा 1000 साल के बराबर है। हमारा सब्र का इम्तिहान जो है वो आखिरी हद तक ले लिया गया है। आज अदालत के सामने ये बात रखी गई है, और वाज़ेह अल्फाज में बता दूं कि अदालत के सामने जो प्रोसीडिंग हुई है वो आप लोगों ने विटनेस किया है कि अदालत ने मुझसे सवाल पूछा कि आप लोग जो हैं आपने प्रोसीडिंग ज्वाइन की है। मैंने अदालत में ये गुजारिश पेश की है कि बिल्कुल हमने प्रोसीडिंग ज्वाइन की है, जहां पे तफसीली जो है गुजारिशात पेश की हैं, जहां पे तफसीली तबादला ख्याल जो है वो किया गया, जहां पे इन लोगों की उम्मीद है, ये होपफुल है, ये सारी रियासती इदारे जो अदालत में आपके सामने खड़े हैं ये होपफुल है, इनकी उम्मीद है, वो हमारी उम्मीद नहीं है, इनकी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी हमें मुस्बत नताइज जो है वो देने वाले हैं। और मामला मैं बार बार इशारों किनारों में आपको बताता रहा हूं, बहुत से ऐसे केसेस आपने मेरी जिंदगी के देखे हैं, मैंने कभी इशारों किनारों में बात नहीं की, मैं बराह रास्त बात करता हूं। यहाँ पे मैं उसका वकील नहीं हूं सिर्फ इमरान रियाज का, मेरी 2 पोजीशंस हैं, मैं उसका दोस्त भी हूं। मेरे एक मुश्किल इम्तिहान है कि मुझे बड़े तरीके से जो है सारे मामला को लेकर चलना है। उसके तमाम मामला माजी में भी देखे हैं, आज भी देखे हैं, अल्लाह ना करे कभी जिंदगी में उसको दोबारा तकलीफ हो, वो भी देखने हैं। इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस में अदालत को मैंने आखिरी गुजारिश आपके सामने यही की थी कि हम पर उम्मीद है, बावजूद हम आपको ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है कि अभी हमें मुस्बत नताइज देंगे, जिसकी बुनियाद पर हम अपनी उम्मीद आपसे जाहिर कर रहे हैं कि इन्हीं का बयान हमारी सिर्फ उम्मीद है। और हमारी उम्मीद आपसे भी यही है कि अब बस ये आखिरी जो है वो तारीख हो, इससे आगे तारीख ना जाए, इससे आगे तारीख ना जाए। क्योंकि इमरान रियाज की फैमिली, उसके वकला बहुत सी बातें जो अब तक जो है वो नहीं की, सिर्फ इसी बुनियाद पे ये कि मसला जो है वो पेचीदा ना हो, मसला जो है मजीद कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मसला बाहमी तरीके से रजामंदगी के साथ, मामला फहमी के साथ हल हो जाए। फिर जब आप लिटिगेशन में जाते हैं ना, तो फिर दोनों फरीकैन को हासिल है कि वो जितनी लीगल बैटल जो करनी है और अपना भरपूर मौकफ देना, जिसको वो होल्ड करते हैं फॉर द टाइम बीइंग इन द स्पिरिट ऑफ द प्रोसीडिंग, वो फिर बातें होंगी। बस काफी जॉइंट वर्किंग ग्रुप के साथ बैठे हैं, तो अफगानिस्तान वाली जो स्टोरी थी, और भाई अफगानिस्तान की स्टोरी मैं बार बार कह चुका हूं कि कोई अफगानिस्तान की स्टोरी नहीं है, ये मीडिया ने इसको मिस रिपोर्ट किया है। आईजी पंजाब ने अदालत में बयान दिया था कि वकूए की
जहां पे स्पॉट ऑफ अबडक्शन है, वहां से जो सा है जो कुछ नंबर ट्रेस हुए हैं वो अफगानिस्तान के नंबर हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई उसको यहां से लेके जो सा, कभी किसी ने ये बयान नहीं दिया, ये बोगस किसी ने मन गढ़ंत फर्जी कहानी जो सा है उसको मिस रिपोर्ट कर दिया, या उसके कान काम नहीं कर रहे थे, या उसकी अकल काम नहीं करती, जिसने एक नेगेटिव एंगल दिया और उस पर र्यूमर फैक्ट्री जो सा है वो पूरी दुनिया में चल गई है कि खुदा न खास्ता जो सा उसको अफगानिस्तान में ले जाया गया। जितनी प्रोग्रेस हमें जो सा है वो आज तक जो है ऑफिशियली दिखाई गई है या हमसे गैर रस्मी बातें की है, उसमें इस चीज का कोई नामो निशान या जिक्र नहीं है। थैंक यू। 22 अप्रैल को लंदन में था, लंदन गया था अपनी पढ़ाई के लिए। 7 जून को मैंने वापस आना था। इमरान 11 मई को मेरे जाने के 2 हफ्ते बाद जो है उसको अगवा किया गया और मैं 8 दिन बाद जो है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आया। मेरे पार्टनर शाजिब मसूद साहब, मेरा दफ्तर जो सा है उसने केस फाइल किया और वो केस को लीड करते रहे मेरी गैर मौजूदगी में, लेकिन मैं वहां पे बैठा हुआ 24 घंटे जो है ना वो इस केस को मॉनिटर करता रहा, लुक आफ्टर करता रहा, पार्टिसिपेट करता रहा और इसमें अपनी इनपुट जो है वो देता रहा। और बहुत सी ऐसी मामला जो अदालती सतह पर नहीं, बहुत सी अलग सतह पे थे, वहां पर भी जो है उसको कंप्लीटली जो है अपने इंडिपेंडेंट जराये से पूरी कोशिश करके उसको ट्रैक करता रहा, उसकी लाइफ सिक्योरिटी और वेल बीइंग के बारे में। उसके बाद मैं पाकिस्तान 10 दिन के लिए वापस आया और आखिरी तारीख जब 30 तारीख थी उस रात को मैं दोबारा लंदन गया। 7 दिन के लिए मैं वापस आ गया। मेरे कोर्सेज जो हैं वो भी नामुकम्मल है, लेकिन मैं 2 मरतबा जो है, एक मरतबा 10 दिन के लिए और अभी पिछले 6 दिन से लिए फिर आया हूँ। मैं फिर जो है वो यहाँ पे काफी देर तक मौजूद हूँ। मैं इस मसले को इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह के हुक्म से मुझे पूरा यकीन है कि मैं हल करा लूंगा। इन 34 दिन में एक ऐसा लम्हा नहीं है, एक ऐसी रात नहीं है, एक ऐसा दिन नहीं है जहां पे एक लम्हे भी जो है ना वो के लिए भी जो है वो आया हो। चैन सिर्फ उसी सूरत में आएगा, इत्मीनान सिर्फ उसी सूरत में होगा जब वो हमारे दरमियान में मौजूद होगा। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।